السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان محمد احسان الحق جس قادری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہچان جڑا والا۔ آج میں آپ کے لیے بڑی زبردست ایک سٹوری لے کر آیا ہوں جس میں بہت خوشی کی بھی بات ہے اور کچھ غم کا بھی حصہ ہے۔ بات یوں ہے کہ ہمارے ایک دوست جڑا والا کا قریبی گاؤں سید والا روڈ پنڈی عیسیٰ، یہاں کے نوجوان جو 7 سال پہلے اچانک لاپتہ ہو گئے اور لاپتہ ہونے کے بعد وہ 7 سال تک مل نہ پائے، اور اچانک سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اپنے والدین تک پہنچے، اور کس انداز سے پہنچے، کیسے پہنچے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بعد میں۔ لیکن ابھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل پہچان جڑا والا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرے ساتھ موجود ہے جڑا والا کے معروف ثنا خان جناب رائے سجاد فریدی صاحب۔ سجاد صاحب، آپ کے چچا جان 7 سال پہلے لاپتہ ہوئے اور اچانک یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، لیکن فوائد بھی بہت ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ سوشل میڈیا ہے ہی اچھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کا چاچو آپ کو 7 سال بعد مل گیا۔ آپ بتائیے گا کہ کس طرح یہ گم ہوئے اور پھر کس طرح یہ آپ کو ملے؟ جی، ایسا ہے کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے اس کے جو کزن تھے وہ اس کے ساتھ کزن کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے کبوتر کو، ان کو بہت شوق تھا، تو ادھر سے کبوتر لینے بچے کی والا جو سائڈ ہے اس کے ساتھ جو اپنے کزن کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس نے 1-2 دن ادھر رکھا اپنے پاس، اس کے چاچو جان تھے اوپر اپنے پاس رکھا۔ تو ایسا ہے کہ اس نے پھر 2 دن بعد اسے بٹھا دیا ادھر گاڑی پر۔ اس نے گاڑی پر جب بٹھا دیا تو چاچو جان کہتے ہیں اب آپ اگر ہمیں پتہ چلا ہے، ہمیں تو پہلے یہ ڈاؤٹ تھا کہ انہوں نے اس کو بیچ دیا، انہوں نے اس کو کہیں مطلب بیچ دیا یا سیل کر دیا یا کسی کام پہ لگا دیا ہے، ہمیں یہ ڈاؤٹ تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ گھر سے لے کے گئے تو آپ کا شک بھی ایک حقیقت پر مبنی تھا کہ بنتا بھی تھا، کوئی اور کوئی بھی ہوتا تو یہ شک کرتا۔ کیونکہ ان کے جو حالات ہیں نا وہ بھی کچھ اس طرح کے تھے جو ہر بندہ جانتا تھا تو ایسا کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان پہ یہ بہت ہی ڈاؤٹ کیا۔ تو لیکن جب ہمارے چاچو جان آئے ہیں تو جو ہمارا ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے ان کے خلاف FIR کٹائی، ہم نے ان کے خلاف مقدمے درجات بلند کروائے۔ لیکن ایسا ہے کہ جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ میں جب ادھر انہوں نے مجھے بٹھا دیا تھا گاڑی میں، جب میں گاڑی میں بیٹھا تو ادھر سے جو ڈرائیور ہے نا، جو کنڈکٹر ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایسے کی ہے کہ میں نے جب اس نے مجھے کرایہ مانگا، میں نے 50 روپے اسے دیے، اس نے مجھ سے 50 روپے نہیں لیے، حالانکہ اس وقت کرایہ تھا 60 یا 70 روپے، 10 یا 20 کی خاطر اس نے کیا کیا، اس ظالم نے ایسا کیا کہ اسے مارا پیٹا اور اسے 40 موڑ اتارنے کی بجائے آگے لاہور موڑ یا آگے کہیں اتار دیا، صرف 10 اور 20 روپے کی خاطر۔ اس بندے کی اس زیادتی کی وجہ سے ہم 7 سال میں اور میری پوری فیملی، ہمارے پورے جو گھر والے ممبر ہیں اور بلکہ پورا جو گاؤں موضع پنڈی حصہ ہے وہ اس بات پہ بہت افسوس زدہ ہوا کہ جو ہے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 7 سال ہم نے افسوس میں گزارے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ گزرتا جو چکری انٹرچینج ہے اس سے اگر اتریں تو ادھر نوترا اور گاؤں آتا ہے، نوترا اس سائڈ چکری انٹرچینج راولپنڈی، اور ادھر اترے تو ادھر گاؤں آتا ہے نوترا، ضلع موٹاوال، ضلع راولپنڈی میں گاؤں آتا ہے موٹاوال۔ تو ادھر جو تھے ہمارے وہ بہت ہی اچھے بھائی تھے، جو پولیس کانسٹیبل تھے تھانہ ایئرپورٹ راولپنڈی میں، ان کا نیم ہے محمد اشتیاق۔ تو ان کی کاوشوں سے، ان کی صرف ذاتی کاوشوں سے اس نے میرے ساتھ بہت ہی کوآپریٹ کیا، ہمارے ساتھ کالز کی، مجھے ذرا سے انفارم کرتے رہے کہ آپ نے کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، انہیں ہماری ویڈیو کال کری۔ یہ تو اب کی بات ہے نا، آپ کرتے رہے۔ جی تو اس سے پہلے میں پہلے کا جاننا چاہتا ہوں کہ کس انداز سے پھر آپ ان کو تلاش کرتے رہے؟ جی ہم نے اینڈ پہ کیسے یہ ہم نے اشتہارات لگائے، ہم نے کافی طرح جو گاڑیوں پہ جاتے رہے، اس میں بہت ہی پورا گاؤں ایک مجموعے کی شکل میں، ٹوگیدر کی شکل میں اس کو ہم کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ہمیں یہ نہیں ملے۔ آخر کار سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، ہم مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے نقصانات بہت ہیں، لیکن دیکھیں آپ نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد بھی بہت ہیں۔ فوائد آپ کے سامنے ہے کہ ایک سوشل میڈیا نے ہمارے جو 7 سال پہلے چاچو تھے وہ گم ہو گئے تھے، انہوں نے ہمیں ایک نعمت کی شکل میں عطا کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے فوائد جو بہت ہیں، تو پھر اس کو ڈھونڈتے جب گئے 7 سال بعد ہم تو بیٹھ گئے تھے، ہم نے کہا مل نہیں رہا، ہم نے اپنی پوری جائیداد ان پہ خرچ کر دی۔ ٹھیک ہے، میرے دادا جان تھے وہ فوت ہو گئے انہی کے غم میں، دادی جان تھی انہی کے غم میں فوت ہو گئی۔ تو ہم جو اس کے 4 بھائی ہیں اور چاروں بھائی جو ہیں ان کو ڈھونڈتے مطلب ایک یہ ہے
इनका नेम है मोहम्मद रिजवान, और ये चाचू जान है मोहम्मद रिजवान। ये इधर सभी इनको ढूंढते रहे लेकिन ये नहीं मिले, और इनके साथ पूरे गाँव वाले। बिल आकर अल्लाह के करम से आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से ये हमें मिले हैं। चक्री इंटरचेंज से उतरते मोहतरा गाँव आता है, और उधर से जो खसूसी काविश है वो है मोहम्मद इश्तियाक की, और चौधरी वहाँ के जगीरदार है चौधरी अमीर अली खान, उनकी ज़ाती काविशों से ये हमें बिल आखिर मिले गए हैं। अच्छा, ये कैसे उनकी काविश कैसे हुई, कैसे आपको तक वो पता चला कि ये जनाब वहाँ पर हैं? फिर आपने क्या रब्ता किया, किससे रब्ता किया और कैसे पहुँचे? जी, मेरे पास ना मेरे अपने जो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में वीडियो वायरल होती मेरे पास आई। मैंने उसकी तस्दीक की कि पीछे कहाँ से आई है। तो यानी आपने वो वीडियो देखी तो आपको पता चल गया ये मेरे चाचू जान है। तो मैंने उसकी जो है ना तस्दीक की। मैंने जो पीछे जो है ना चाचू जान को लेके वाल साहब को लेके पीछे चला गया। तो मैंने तस्दीक करते करते उस बंदे तक पहुंचा जिसने ये वीडियो बना के सेंड की थी। उस बंदे तक पहुंचा तो उस बंदे को जिसने कहा था ना कि ये वीडियो बना के तुम सेंड करो, वो एक बेज़ुबान था। इश्तियाक ने उसको कहा था, जो इश्तियाक पुलिस कांस्टेबल है ना, उसने कहा था कि तुम इसको जो है ना वीडियो बना के सेंड करो। उसके जो घर वाले थे ना मोहम्मद इश्तियाक के, उसके घर वाले इतने अच्छे थे कि उनकी हमशीरा कहती थी, मुझे कहती थी कि मैंने अपने भाई इश्तियाक को कहा था कि मेरा अगर 1 करोड़ रुपये भी लग जाए ना, 1 करोड़ रुपये भी किसको अपने घर वालों के पास पहुँचाना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आदमी है। उसको अपने इसके घर वाले पहुँचाना, उसके बेटा नहीं था, उसकी औलाद नहीं थी। उसने कहा कि मेरा अगर 1 करोड़ रुपये भी लग जाए ना, उसको घर वालों के पास पहुँचाना। उसकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी थी इश्तियाक की। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। तो इसलिए फिर उसने मुझे कॉल की। मैंने उस वीडियो थी ना, मैंने जो मेरे पास आई, मैंने उस पर अपना नंबर लेकर और दोबारा उसको वायरल कर दिया। जब वायरल किया उसकी पहुंची, वो उसके पास पहुंची। उसने मेरे नंबर पे कॉल की, मुझे कहा भाई आप सजा दो। मैंने कहा जी मैं सजा दूँ। उसने कहा कि ये फलां जो आदमी है वो आपको क्या लगता है? मैंने कहा मेरे चाचू जान है। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पास है। तो मैंने कहा आप मुझे कैसे यकीन दिला सकते हैं कि वो आपके पास है? तो उन्होंने फिर घर जाकर मेरी वीडियो कॉल करवाई। जब उन्होंने हमारे पूरे घर वालों से हमारी वीडियो कॉल करके हमने देखा, ये बहुत खुश हुआ, हम बहुत खुश हुए। तो हमारी उस टाइम में जो खुशी का ठिकाना नहीं था, हम बहुत ही खुश थे उस वक्त। तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया और उसको रिक्वेस्ट की कि हम आपके पास अभी आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, अब जब चाहे आ सकते हैं। हमें तो अभी 4-5 साल से इस कोशिश में लगे हुए थे कि इसके वालिद इसको मिल जाए। तो हम मोस्ट वेलकम आपको करते हैं, हम हमारे पास आप आए तो आप अपना लेके जाए भाई। हमारे जो चाचू जान है और वालिद साहब हैं, हम उधर पास गए उनके पास, रोतरा उनके गाँव में हम उनके पास गए और उन्होंने हमें बहुत ही इज्जत दी, बहुत ही रिस्पेक्ट की। और जो मोहम्मद इश्तियाक है रात को ड्यूटी करके आए थे, सुबह शहरी वक्त 3 घंटे मुसलसल वो रोड में खड़े हुए थे। मुसलसल रोड पे हम और हमारा इंतजार करने के लिए मुझे जो लोकेशन के हिसाब से वो बताते गए कि आपने मतलब किस तरह आना है, इस तरह आना है, फलां से आना है, फलां से आना है। उनकी बहुत ही काविश है, उनका बेहद ममनून मशकूर हूँ मैं, और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, पूरे ख़ानदान की तरफ से और पूरे गाँव की तरफ से हम उनका बेहद ही शुक्रगुजार हैं। क्योंकि उन्होंने उनकी काविशों से अगर वो काविश ना करते तो कभी भी मेरे जान हमें नहीं मिल सकते थे। उनकी बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। और जब उन्होंने हमें बुलाया तो हम उस गाँव में पहुँचे, उन्होंने हमें सैरी कराई, बहुत ही अच्छा एहतमाम किया हुआ था उन्होंने और हमारी बहुत ही खिदमत की, बहुत ही अच्छे लोग थे। जब अब इसको लेके आने लगे फिर उसकी मैंने तैयार करके हमें दे दिया कि आप लेके जाएँ। हम जब लेके आ रहे थे तो तब ऐसा हुआ कि उनके जो जिसने पाला हुआ था ना इसको 7.5 साल से अपने पास रखा, उनका जो है ना गमी बहुत थी, उनको खुशी भी थी और गमी भी बहुत थी। खुशी इस वक्त की थी कि ये अपने जो है ना इसके माँ बाप हैं उनके पास जा रहे हैं, और गमी इस बात की की थी कि ये 7 साल हमारे पास रहा और हमें छोड़ के जा रहे हैं। उनके छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी रोते थे कि ये हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं। और पूरा गाँव टुगेदर इकट्ठा हो गया, पूरा गाँव का मजमू इकट्ठा हो गया। वहाँ के जो मौलवी साहब हैं वो भी मतलब बहुत ही इज़हार अफसोस कर रहे थे और खुशी कर रहे थे कि ये मिल गए। अफसोस इसलिए कर रहे थे कि हमारे पे छोड़ के ये जा रहे हैं। तो अभी वो बात मतलब हर एक दिन में 3-4 दफ़ा वीडियो कॉल करते हैं और इनसे बात करते हैं, बहुत ही खुश थे। हम उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि देखें ना, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी हैं, और अच्छे भी ये आपके सामने मिसाल है, और उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, मैं यहाँ पर ना इश्तियाक साहब और वो कांस्टेबल क्या नाम बताया मोहम्मद इश्तियाक कांस्टेबल चौधरी अमीर अली खान साहब और इश्तियाक साहब को मैं स्पेशली जड़ावाला, पूरे जड़ावाला की तरफ से सल्यूट पेश करता हूँ कि आपने ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इसका अजर जो है वो क़यामत के दिन अल्लाह से मिलेगा और अल्लाह ही इसका अजर दे सकता है। जड़ावाला, पूरा जड़ावाला मिलकर के आपके इस कर्ज का एहसान का कर्ज उतारना चाहे तो मैं कहता हूँ कि नहीं उतार सकता। जितना बड़ा एहसान आपने शहर जड़ावाला पर किया है, और पहचान जड़ावाला यूट्यूब चैनल का ऑनर होने के नाते मैं आपका स्पेशली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, सल्यूट पेश करता हूँ। ज़ाहिर है कि हम भाई से गुफ्तगू नहीं कर सकते। अच्छा, इशारों में आप गुफ्तगू कर सकते हैं इनसे? अच्छा, आप इनसे ये पूछिए कि वो आपके वो ज़ाहिर के माँ बाप बने हुए थे, बहन भाई बने हुए थे, तो अब आप उनके साथ राब्ता रखेंगे, नहीं रखेंगे, या क्या आपके असली माँ बाप मिल गए, अब आप क्या करेंगे?
सुनो। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया है और मैं उनको नहीं भूल सकता, मैं उनको नहीं भूल सकता, वो मुझे नहीं भूल सकते। मैं माना कि अपने रील अगर आ गया लेकिन मैं उनको नहीं भूल सकता, उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये एहसान, ये वो कहते हैं ना कि जानवर का बच्चे से भी प्यार किया जाए ना, जी, जी। तो वो भी जनाब वो घर छोड़कर नहीं जाता, बेशक खुला छोड़ दिया जाए। आप तो जानवर पालने वाले लोग हैं, तो फिर इंसान जो है अशरफुल मखलूकात, तो वो एहसान कैसे भूल सकता है? पर जब मैं फैमिली तो एक तरफ, मैं एज ए जड़ावाला शहरी हूँ, मैं इस फैमिली का बहुत मशहूर हूँ। अच्छा सर, आपके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, इसी गम में, इसी अफसोस में, इसी दुख में लेकर चले गए। अब ज़ाहिर है कि क़यामत के दिन इंशाअल्लाह मुलाकातें होंगी और बहुत अच्छे अंदाज से होंगी। और इस दौर में आपने कैसा वक्त गुजारा? ज़ाहिर है कि ये बात बताने वाली तो नहीं, लेकिन मेरे नाज़रीन आपके चेहरे से, इंप्रेशन से आपके दर्द का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त को आप क्या कहेंगे? हम बहुत मुश्किल में थे जब ये गुम हो गया था, हम बहुत तेरी मुश्किल में, पंजाबी लिबास में बोलता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल इसमें दिन गुजारे, 7 साल गुजारे। घर में कोई चीज़ नहीं छोड़ी हमने, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो हमने इसके पीछे नहीं लगाई। सब कुछ लगाकर फिर हमारे वालिद 4 पाई पर बैठ के वे कहते हुए अभी नहीं मिल देगा, फिर वो वफात पा गए। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह का करम है और भाई इश्तियाक हो रही मेहरबानी, तो भाई अमीर खान की मेहरबानी जिन्हें सानू ये मिला ही था कि अल्लाह सोने मदीने वाले करम ने इसको हमें इब्राहिम मिला दिया। हम इसमें बहुत खुश हैं, हमारा भाई मुझे मिल गया। मैं यहाँ पर कुछ दोस्त और भी खड़े हैं। सर आप यहीं से हैं, आप पिंडी ईसा से हैं, की करते हो तुसी? भाई खेती बाड़ी करना कौन केड़ा कोई मुश्किल बुरा काम है, अच्छा काम है। अच्छा ये दस्यो कि तुसी जनाब इस जी मतलब तुसी की कहोगे इस मौके पे कि जनाब माशाल्लाह साडा भाई जेड़ा घर आ गया वा, इस बारे तुसी की कहोगे? इससे ज़्यादा और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे एक किस तरह किस अंदाज से सोशल मीडिया के ज़रिए और एक दोस्त ने कोशिश की तो एक ख़ानदान के पिछड़े हुए बेकरार दिलों को चैन मिल गया और एक घर का फ़र्द जो था वो अपने घर पहुंच गया। और कितने वो काबिल फ़ख्र हैं वो पुलिस वाले जो इस तरह के काम करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि काश कि मेरी सारी पुलिस जो है वो ऐसी हो जाए, पूरे पाकिस्तान की पुलिस ऐसी हो जाए कि लोग इसको देखें तो उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, एक तहफ़्फ़ुज़ उनको मिले कि यार ये मेरा मुहाफ़िज़ है। काश कि किसी पुलिस वाले को देखकर नागवारी का एहसास किसी को भी ना हो। और ये उसी वक्त होगा जब इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आएंगे और इस तरह के जो इश्तियाक साहब जैसे जो पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल हैं, वो इस तरह का किरदार अदा करेंगे तो फिर ये बात बनेगी कि पुलिस का जो इमेज है वो बेहतर होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए जब तक मैं कोई नई स्टोरी नया मौजू लेकर दोबारा आपके पास हाजिर नहीं होता, आप अपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल्लाह काशिश कादरी को इजाज़त दीजिए। जाते जाते यही कहना है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जब तक मैं दोबारा आपके पास हाजिर नहीं होता, अपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल्लाह काशिश कादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।